Welcome back friends, this is Current Affairs Funda. So today I will discuss the bar chart DI. करंट अफेयर्स फंडा में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बार चार्ट डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे। तो अभी तक टोटल हमने 9 DI के सेट निकाल चुके हैं। तो मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 1 से लेकर 9 तक के सारे DI के पार्ट देख लें और उसके बाद आप जो भी SBI क्लर्क का पेपर अपीयर करने जा रहे हैं प्री में, तो आपके वहां से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं बन जाएंगी। आप DI आराम से बना लेंगे। जितने मैंने पार्ट अभी तक कराए हैं उतनी रिवीजन आप कर लीजिएगा। ओके, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स हमारा फेसबुक का ग्रुप बना हुआ है और फेसबुक का पेज भी है, उसको आप जरूर से जरूर ज्वाइन करिए। सो वी आर डिलीवरिंग free education to all of you, so kindly share our videos among your friends. Fine. And friends, these are the basically Facebook page and Facebook group, so kindly join both of them and enjoy and post your doubt in this group. So I will share a data interpretation with you, so let me decode this DI for all of you. तो अब हम डेटा इंटरप्रिटेशन बार ग्राफ की बात करने जा रहे हैं। ये DI बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और ये सेंट्रल बैंक पीओ एग्जामिनेशन में आई हुई है। तो आप समझ सकते हैं पीओ क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो अभी हम इस डेटा को डिकोड करके बताएंगे क्या इसका बेसिकली मतलब है। So first of all friends, the number of appeared candidate and passed candidates in hundreds are given here in the test from a 7 different institutions. 7 different institutions हैं, जैसे कि A, B, C and D, E and F and G. These are the basically 7 institutions. Fine. And there are two kind of candidates. The first one is appeared candidates. These are the red line consist of appeared, and yellow, that means these are consist of passed students. So these are the passed students. So from here friends we can calculate two things. First one, that is appeared candidate, we can easily find out if I am talking about A group. Fine. So in A, how many candidate appeared? Appeared, that is the red line here. So friends, see here 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. The middle line consists of 13 number. That means 0, after that 1, 2, and middle, that is odd number 3, in middle 5, in middle 7, in middle 9, in middle 11, and in middle 13. So this is the middle here, 14 and 12. So the middle value will be here. That means appeared candidate of A group, that is 13. So the data is given in 100, so we'll multiply by 100. So we will write here 1300. Fine. Second thing friends, if I am talking about the passed candidate of G. In G, yellow line consists of the passed students. So what is the data of pass students? So see here, that is in between 6 and 4 in middle. So we will write exact 5 here, and 5 into 100 it will be 500. So 500 total students pass the exam. Friends, here we can find out the failed also. If I am talking about appeared candidate in group A, that is 1300. So how much student pass the exam? That means 1200 pass the exams. Fine. So in group A, total 1300 appeared and passed. That means they passed the exam 1200. So how many failed here? 100 students failed the exams. So from here we can interpret the failed, passed and appeared, three kind of data from this table, from this bar chart. Fine. तो इस बार चार्ट से हम तीन तरीके के डेटा निकाल सकते हैं। पहला अपीयर्ड कैंडिडेट। अपीयर्ड कैंडिडेट फ्रेंड्स, जो रेड वाली लाइन है वो अपीयर कैंडिडेट की है और ग्रुप दिए हुए हैं ए से लेकर जी तक, और यहाँ 0 से लेकर 16 तक हमें लाइन दी हुई है। मतलब जो मिडिल वाली है उसको आप बीच का नंबर काउंट कर लेना। 0 और 2 के बीच में 1 आता है, 2 और 4 के बीच में 1 आता है, 3 आता है,
4 और 6 के बीच में 5 आता है। इस तरीके से मिडिल नंबर जो है वो आपका आसानी से फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब आप 3 डेटा निकाल सकते हैं। एपियर्ड कैंडिडेट आपको ग्राफ से मिल जाएगा, पास्ड भी मिल जाएगा, लेकिन फेल्ड नहीं मिलेगा। तो आप एपियर में से पास्ड वालों को जब घटा दोगे तो आप इस चीज का फेल्ड स्टूडेंट्स मिल जाएंगे आपको, कि कितने एपियर हुए थे टोटल, उसमें से पास वाले घटा दो तो फेल्ड मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट हियर। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर फ्रेंड्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स appeared from institute B, C, D and F. That means we need to calculate the data for appeared candidates of B plus C plus D plus F and passed candidates from A, E and G together. That means passed of A, E and G, and we need to take the difference here. So the difference, this will be our result from here. Fine. So see right now, B, C, D and F. So I'm talking about the B group. How much students appeared? That means first 1400. Fine. So we will write here 1400. Why? Because the data is given in 100, and either we can left this 100 parts, we can only add this 14 here. So 14 plus, in C there are basically 7, and in D 12, and in F that means 6. So friends, add all the numbers, it will be 39. And what is the past students here? This is appeared and we are talking about the past here. So past is the yellow line. Okay, so we need to calculate A, E and G. What is the numbers? A here, that is 12, and E, that is 12 also, and G, that is friends 5 here, because this is in middle in between 6 and 4, so we will take 5 here, so it will be 5. So right now it will be 29. And what is the difference between these two values, past and appeared? That means difference is here 10, and the data is given in the format of 100, so we will multiply by 100, so it will be 1000. That is our answer. Now let's check the option 4, this is correct one. फाइन। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया था कि जो स्टूडेंट्स अपियर हुए हैं बी सी डी एफ के और जो स्टूडेंट पास हुए हैं ए ई जी के, उन दोनों के बीच में डेटा का आपको डिफरेंस लेना है, मतलब कि आपको बताना है कितना डिफरेंस है। तो मैं डिफरेंस ले लूंगा, डिफरेंस बता दूंगा। तो देखिए मैंने ए अपियर्ड वाले लोगों की बात की है, सबसे पहले बी सी डी एफ में। तो देखिए बी में कितने अपियर हुए हैं, बी में अपियर हुए हैं कितने, 1400 हुए हैं डेटा, लेकिन यहाँ 14 लिखा है तो 100 की फॉर्म में 1400 हो जाएगा, लेकिन मैं केवल 14 ले रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि 100 तो कॉमन है, बाद में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ मैंने 14 लिख दिया। इस तरह से बी सी में कितने थे, 7 थे, और डी में 12 और एफ में 6। अब पास की बात करते हैं, पास का है येलो वाला ग्राफ, तो पास हमें किसमें चेक करने, ए ई और जी में। ए में देखिए पास कितने हैं, 12 हैं, और ई में कितने हैं, ई में भी 12 हैं, और जी में कितने हैं, ये हैं 5। तो आप इसको जोड़ोगे आपको मिलेगा 29। 39 में से 29 घटाया 10 बचा, 10 की मल्टीप्लाई 100 से कर दी, क्योंकि सारा का सारा डेटा किसमें दिया हुआ है, 100 की फॉर्म में। तो यहां से 1000 हमारा आंसर आ गया। नाउ लेट्स मूव फॉर द सेकंड क्वेश्चन हियर। सेकंड क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट फ्रेंड्स, या second question, what is average number of candidates passed from all the institutions together? Fine. So we need to calculate the average number of candidates passed from all the institute together. Fine. So we need to add pass of E, A, B, C, D, E, F and G, and we need to take the average here. That means we need to divide by number of groups. So there are basically 7 groups that is given here, so we will divide by 7. Now friends, passed candidate in A group, this is the line here, so we will write 12 here,
12 plus in B that is 10. So we will write 10 here. I am adding right now. So it will be 4 in the C. In D it again 4. And in E that is 12. Fine. And in F and G that is 2 and 5. So friends, add all these values and divide by 7. So if you will add all these values, it will be 49. 49 divided by 7, it will be 7. What data is given in the format of 100? So we will multiply by 100. So now it will be 700. That is the correct answer. So from here, the option A, that is 100% correct here. Fine. तो यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं सारे के सारे स्टूडेंट्स, उनका आप एवरेज निकाल के दिखाओ। तो देखिए एक ग्रुप में पास कितने हुए हैं, एलो वाला जो चार्ट है वो किसका है, पास का है। तो मैं ए बी सी इस तरीके से सारे ग्रुप के पास कैंडिडेट को ऐड करूंगा, 7 से डिवाइड कर दूंगा और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 क्वेश्चन हियर, सी फ्रेंड्स, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स passed from institute C and E, that is C and E together is approx what percentage of the total number of candidates appeared from A and G together. So now question is asking about the passing member of C and E, and you need to take the percentage in compare with respect to appeared candidate of A and G. Now multiply with 100. That is the equation here. Now formulate all the values here. So C and E passing candidates. So this is C here, this is E here, and passing candidate, that means 4 here and 12 here. So it will be 1600 because data is given in the format of 100. And appeared candidate of A and G, so that is A here and G here. Appeared A is 1300 and appeared G is 1100. So 13 plus 11, it will be 2400. Multiply with 100, and now it will be friends 200 divided by 3, and finally we can say 66.66%, or we can say 67% approximation. So right now option number 4, that is correct here. तो यहाँ क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पास हुए हैं जो सी और ई इंस्टीट्यूट से, तो पास सी और ई के निकालने हैं, और अपीयर जो हो रहे हैं ए और जी के, उनके साथ आपका वो परसेंटेज निकालना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो पास कितने हो रहे हैं, सी और ई के मैंने जोड़ा है 1600 हो रहे हैं, और ए और जी के 2400 हो रहे हैं, और इसका 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकल आएगा। ठीक है, तो ये 200/3 हुआ, फिर 66.66 हमारा क्या हुआ, परसेंटेज हुआ। नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नंबर 4 हियर। फ्रॉम विच इंस्टीट्यूशन इज द डिफरेंस बिटवीन द appeared candidate and passed candidate is the maximum? That means ultimately the question is asking about, you need to calculate the failed candidates and in which group the failed candidate is maximum. क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है कि यहां पर जो ग्रुप दिए हैं उसमें डिफरेंस निकालना है आपको। क्या क्या डिफरेंस का मतलब, आपको यहां पर जो वैल्यू दी है, यहां पर जो वैल्यू, ये आपको डिफरेंस निकालना है। ठीक है, और जो डिफरेंस आपका मैक्सिमम आएगा वैल्यूज में, ठीक है, वो आपको बताना है कि किस ग्रुप में जो मैक्सिमम डिफरेंस आ रहा है। तो फ्रेंड्स मैं इस चार्ट को देखकर ही बता सकता हूं। देखिए यहां से यहां के बीच में बहुत थोड़ा सा गैप है, यहां से यहां के बीच में थोड़ा सा गैप है, इसके बीच में इतना गैप है, लेकिन देखिए डी ग्रुप में एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, तो इन दोनों के बीच में देखिए बहुत बड़ा गैप दिख रहा है ना। तो यहां से भी मैं कह सकता हूं कि ये ग्रुप कौन सा होगा, डी ग्रुप होगा। तो आइए हम फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले मैं सारे ग्रुप लिख लूंगा, ए बी सी डी ई एफ एंड जी। अब सबके डिफरेंस बताने, ए में कितना डिफरेंस है, 12 और 13 के बीच में डिफरेंस 1 का है, और 14 और 10 के बीच में डिफरेंस कितना है, 4 का है। ठीक है, सी में देखिए कितना डिफरेंस है,
7 और 4 के बीच में 3 का डिफरेंस है। डी में कितना डिफरेंस है? यहां पर 12 है और यहां पर 4 है, मतलब 8 का डिफरेंस है। और ई में कितना डिफरेंस है? 14 और 12 है, मतलब 2 का डिफरेंस है। सॉरी, ई में बात की जाए तो ये कितना है? 15 और 12 है, मतलब 3 का डिफरेंस है। ठीक है। और एफ में कितना डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है, मतलब ये है 6 और ये है 2, तो कितना डिफरेंस हुआ? 6 और 2 के बीच में 4 का डिफरेंस है। ठीक है। और जी में कितना डिफरेंस है? जी में है 6 का डिफरेंस, मतलब एक वैल्यू है 11 और एक वैल्यू है 5, तो ये 6 का डिफरेंस है। अब मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम डी में दिखाई दे रहा है। इस ग्राफ से भी देख के बता सकते हैं, एग्जाम्स में आपको ग्राफ से देखना है। जिसके ग्राफ के बीच में सबसे बड़ा ज्यादा लाइनों का गैप होगा वही डिफरेंस सबसे मैक्सिमम डिफरेंस है। ठीक है। एग्जामिनर इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स किसी दूसरी तरीके से भी पूछ सकता था। वो पूछ सकता था कि फाइंड कैलकुलेट द फेल्ड स्टूडेंट्स एंड टेल मी इन विच इंस्टीट्यूट्स द मैक्सिमम स्टूडेंट्स गॉट फेल्ड। तब भी आपको यही करना पड़ता। यहां पर अगर एग्जामिनर पूछता है कि आपसे मैक्सिमम बताइए किस ग्रुप में स्टूडेंट फेल हुए हैं, तो वो किस में हुए हैं? डी ग्रुप में। ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 here. So friends, right now see what is the ratio. The question is asking about ratio. What is the ratio of candidates who have failed from institute B? We need to calculate the number of failed students of B, failed of B, and ratio with to the number of candidates who have appeared from institution F. So appeared candidate of F, we need to take the ratio here. So friends, what is the number here in B? How much students failed? The difference here, that is 14 and 10, that means 400. So we will write 400 here. And appeared candidate of F, so this is F here. In F, these are the 600 candidates appeared. So 20 will be cancelled out. So we can easily say from here 2:3, this is the ratio here. Fine. So failed of V is to appeared of F, the ratio in between these two candidates, that is 2:3. So option number second, that is correct here. ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, यहां पर फेल्ड जो बी में हुए हैं उनका अपियरिंग कैंडिडेट के साथ में रेशियो निकालना है। तो बी में कितने फेल्ड हुए हैं? बी में फेल्ड हुए हैं, यहां से मैं बताऊंगा आपको, 14 और 10 के बीच में कितना डिफरेंस है? 4 का, तो मतलब 400 स्टूडेंट फेल हो गए। ए में कितने, अब पूछ रहा है एफ में कितने अपियर हुए? एफ में अपियर कितने होते हैं? 600। तो 400 और 600 के साथ रेशियो निकाल दो, 2:3 का रेशियो आ जाएगा। यही हमारा आंसर हुआ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और इसी तरीके से हम आगे के पार्ट आपके लिए डालते रहेंगे। डीआई मैं आपको बता रहा हूं, अभी मैं बेसिक्स करा रहा हूं। डीआई सारे के सारे सेट, एक वीडियो और कुछ कॉन्सेप्ट साथ में रहते हैं। इस तरीके से मैं 30+ सेट आपके लिए दूंगा डीआई के एसबीआई पीओ मेंस एग्जाम तक। अभी क्लर्क के एग्जाम्स हैं तो सारे के सारे इजी लेवल क्लर्क के लेवल के सेट आ रहे हैं। जैसे क्लर्क का मेंस होगा तो क्लर्क के मेंस में बड़े लेवल के क्वेश्चंस में दूंगा, पीओ के मेंस में बड़े लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। Okay, so friends, we will publish a lot of questions related to the SBI PO mains up to. Fine. So do like this video and comment if you have any doubt regarding anything, then do comment here. And friends, kindly join our group, that is Current Affairs Funda Academy on Facebook. And friends, few people were asking about to contribute as a voluntary fee to our educators. That's why we have made a InstaMojo payment gateway link. हमने एक InstaMojo का पेमेंट गेटवे लिंक बनाया है और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, अगर इस एकेडमी के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो के नीचे एक लिंक आएगा और उस लिंक पर क्लिक करके अपना पेमेंट कर सकते हैं। और वो जो अमाउंट हमें मिलता है वो एजुकेटर्स और इस कम्युनिटी को इंप्रूव करने के लिए यूज किया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। वी विल पब्लिश अ लॉट ऑफ वीडियोस फॉर यू इन द सेम पैटर्न। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।